بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور کم کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، ہاں ان کو، فجاء پھر آیا، ہاں ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو جب وہ سو رہے تھے، او یا پھر ہم قائلون وہ دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے، سو رہے تھے، دوپہر کو سوتے ہیں نا، یا رات کو جب سو رہے تھے تو اس حال میں کئیوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور کئیوں پر دوپہر کو جب سو رہے تھے، سوئے بس سو ہی گئے۔ فما کان پس نہیں تھا پھر، دعواہم ان کا چلانا، ان کا پکارنا، جس وقت جاء آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر یہ کہ قالو انہوں نے صرف یہی کہا، انا کنا یقیناً ہم ہی تھے، ظالمین ظالم۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس عذاب آ گیا تو پھر اپنی زبانوں سے انہوں نے اقرار کیا ہم ظالم ہیں، حالانکہ پہلے نہیں مانتے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ پس ہم ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسلا کہ بھیجے گئے، الیہم ان کی جانب پیغمبر، جن کے پاس پیغمبر آئے، اللہ کہتے ہیں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے ان کی دعوت کے جواب میں کیا کیا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ اور ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین پیغمبروں سے بھی، کہ تم نے پیغام صحیح پہنچا دیا تھا۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسالت آئی، ان سے بھی پوچھیں گے جو رسالت لے کر آئے کہ کس کس نے حق ادا کیا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فجاءہا پھر آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو جب وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون یا پھر دوپہر کو جب وہ کیلولا کر رہے تھے۔ فما کان پس تھا، دعواہم ان کا پکارنا، اس وقت ان کا چلانا بولنا صرف یہی تھا جب ہمارا عذاب آیا ان کے پاس، الا ان مگر یہی وہ کہتے تھے کہ انا کنا ظالمین ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ان سے بھی جو پیغمبر بنا کر بھیج دیے گئے، پوچھیں گے کس کس نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رسالت، جو نبوت بھیجی، اس میں ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جیسے مرضی کر لو کوئی بات نہیں چلے گا، سختی ہے کہ اگر مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی۔ اللہ کہتے ان عذابی لشدید میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس عذاب کی لپیٹ میں کتنی پہلی بستیاں آئی، قوم نوح کو دیکھ لیں کیسے اللہ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، قوم لوط کو دیکھ لیں کیسے ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، پھر اللہ نے ایسی بستی اٹھائی اور یوں واپس پلٹ کے زمین کے اوپر پھینک دی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آ گیا، ساری دنیا پہ پانی پانی ہو گیا، سب مر گئے، بس اکا دکا وہی مومن لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ایسے قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھو، اللہ کہتے ہیں ان کی ہائٹ اتنی لمبی، قد اتنے اونچے تھے، اتنے اونچے جیسے گویا کھجور کے تنے ہوں، اور وہ لوگ ایسے درخت کو اوپر سے پکڑ کے کھینچتے تھے تو پورا درخت باہر نکل آتا تھا، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی۔ جب قوم عاد اور سمود، حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم، پھر اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے اور کہا کہ مسلمان ہو جائے، میری اطاعت کرو، کہنے لگے ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم تو کمزور ہیں، اگر تیرا عذاب آئے گا تو ہم بچ جائیں گے، ہم وہ قوم ہے جو پتھروں سے بھی تراش تراش کے گھر بنا لیتے ہیں،
वाकई उन्होंने पत्थरों में तराश तराश के घर बना लिए थे उस दौर में जब कोई इतने आलात ही नहीं थे। तो कहने लगे कि हमारे पास तो इतनी ताकत है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि तुझे माने। पैगंबरों की ना सुनी, और फिर जब अल्लाह के अज़ाब की बिशारत मिली उनको तो उन्होंने अपने घर पत्थरों में बना लिए। कहने लगे यहाँ से हमें कोई अज़ाब तकलीफ़ नहीं देगा। अल्लाह ने फिर उनके ऊपर क्या अज़ाब भेजा था? आंधी हवा भेजी, 7 रातें 8 दिन। इतनी तेज़ हवा थी कि वो उनको उठा के ऐसे वो पत्थर की दीवार से मारती तो ऐसे पूरे बंदे को उठा के, और उसका ताड़ा अलग हो जाता, सारा अलग हो जाता। ऐसे बर्बाद हुए वो कौम। अल्लाह कहते कितनी हैं ऐसी बस्तियां, हमने उन्हें नेस्तो नबूद कर दिया, हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। वो ऐसे पड़े थे, अल्लाह का कुरान कहता है गोया के खजूर के तने हैं, उनके ताड़ा ऐसे लग रहे थे, इतने इतने लंबे। इतनी ताकत वाले मेरे आगे कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। डरो मुझसे, फत्तबिऊनी, बस मेरी तबाह करो। चल फिर के देखो मैंने कितनी बस्तियां हलाक कर दी जिन्होंने मेरे हुक्म की अदूली की, नाफरमानी की। अगर तुम भी करोगे तो बच नहीं सकोगे। अल्लाह कहते हैं फिर ऐसे होता था, वो सोए होते थे जब मेरा अज़ाब आता, उनको तौबा का मौका नहीं मिलता था क्योंकि मैं देना ही नहीं चाहता था। अल्लाह का अज़ाब तब आता है जब वो कौम से पूरी तरह अल्लाह ताला उनको मौका दे चुके हों, हदायत नहीं उन्होंने हासिल की, तब फिर अज़ाब आता, फिर तौबा भी कबूल नहीं होती। सिवाय हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, उनके ऊपर अज़ाब आया था तो उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने कबूल कर ली, नहीं तो किसी कौम पर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी अल्लाह का हुक्म नहीं ना आया था कि तुम निकल जाओ इस बस्ती से, तो वो निकल गए। कहने लगे कि तुम लोग बात ही नहीं मान, थक जाता है ना बंदा, पैगंबर थक गए, बस्ती छोड़ने का इरादा कर लिया, इन लोगों ने हदायत नहीं पकड़ी, मैं चले जाता हूँ। हर तरफ से तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें, परेशानी ही परेशानी है। कहने लगे तुम लोगों पर 3 दिन बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम और वहाँ से निकल गए। अल्लाह ने वहाँ से निकले, पकड़ लिया, मछली के पेट में दाखिल कर दिया कि ये तेरी जेल है, तेरे रब ने तुझे रसूल बना के भेजा, उसका तो अभी इज़्न नहीं आया कि यहाँ से निकल, तो तू क्यों निकला? मैंने अभी उनको मौका देना था, जब उनका मौका ख़त्म हो जाता तो मैं तुझे खुद कहता यहाँ से निकल, फिर तेरा काम था निकलना। तू अपने आका मालिक की मर्ज़ी के बगैर निकला है तो तेरी सज़ा पकड़ है, तेरी भी कैद है। वो मल्लाह कहने लगा ना आज मेरी कश्ती भंवरों में फंस गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तब होता है जब कोई गुलाम अपने आका से नाराज़ हो गया है। उन्होंने कुरानबाजी की तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार निकले। कहने लगे शक्ल से तो बड़ा चमकने वाला चेहरा लगता है, ऐसा तो लगता ही नहीं कि ये कोई गलती कर सकता है। नबी नबी होते हैं, नबी सोने भी होते हैं, मासूम भी, और चेहरे पे नूर भी। अब वो बार बार कुरा करें और फेंके ना, आखिरकार कश्ती वाले ने कहा इसको फेंक देनी तो सारे ही जाएंगे। उन्होंने पकड़ कर दरिया में फेंक दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को, मछली मेरा मेहमान आ रहा है, फिर भी मेहमान बोला। फिर बता मोहब्बत इसलिए थी कि उसने भी तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर दी है। अल्लाह खता माफ़ करने वाले हैं, इतनी खता थी, पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। तो हम कितनी कितनी खताएं करते हैं। अल्लाह ने कहा मेरा मेहमान आ रहा है, मछली इसको गज़ा नहीं, इसको मेहमान बना के रखना पेट में, ऐसे ना इसको गज़ा बना ले। मछली ने ऐसे मुंह खोला, बड़ा सारा शार्क मछली, उसने ऐसे मुंह खोला, पूरे के पूरे यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर। और वहाँ तकरीबन बाज़ कहते हैं 40 दिन, बाज़ कहते हैं 40 माह, 40 का जिक्र आता है कि 40 उसके अंदर रहे, चले 40 दिन भी लगा लें तो तब तक अल्लाह से दुआएं करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैंने जुल्म किया, वाकई मैंने तेरी बात नहीं ध्यान दिया, मैं अपनी मर्ज़ी कर बैठा, मुझे तो तेरी सुननी चाहिए थी, तेरा वेट करना, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने खुद ये सज़ा अपने लिए चूज़ की, तूने जुल्म नहीं किया। ये है पैगंबरों का जुल्म। अल्लाह ने 40 दिन बाद छोटी छोटी आवाज़ आसमानों पे जाए, फरिश्तों ने पूछा अल्लाह ये कौन है?
मीठी मीठी निम्मी निम्मी आवाज़ पर बंदा नज़र नहीं आता। अल्लाह ने कहा ये मेरा यूनुस है जो अंधेरों में, पानी की तहों में, मछली के पेट में काबू आया पड़ा, तुम्हें कहाँ नजर है? उसकी आवाज़ मुझे आती। अल्लाह ने फिर उन्हें निजात अता की और 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आया 3 टुकड़ों की शक्ल में। अब फिर उन्होंने ना अजाब को देख के अमूमन कौम तौबा कर लेती थी। उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ने कहा अभी मैंने पैगंबर को कहा ही नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से गया था, तुम्हारे पास अभी मौका था, इसलिए मैं तुम्हें फिर मौका दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं जब किसी कौम की हद हो जाती है ना तो फिर मैं उसे माफ़ नहीं करता, फिर मैं उसके ऊपर अजाब भेजता हूँ, तबाह बर्बाद कर देता हूँ, और तब भेजता हूँ जब वो सोए पड़े होते हैं। उनको सॉरी कहने का मौका भी नहीं मैं देता, उनको लेटे लेटे हलाक करके आगे तक पहुँचा देता। कितनी ऐसी बस्तियाँ, एक आधी नहीं, कितनी। खुद को बचाओ। अल्लाह का मकसूद ये है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल, अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों, बहन भाइयों, कज़नों, अपनी फैमिली को जहन्नम से बचाएं। जहाँ जहाँ तक आपकी रिश्तेदारी चलती है उसको जहन्नम से बचाएं। आज हमें स्वाय किसी को मीठी बातें करने के कोई काम ही नहीं, इस्लाह की तो बात ही नहीं करते। क्यों? इस्लाह की बात अच्छी नहीं ना लगती, तो हर कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह हदायत अता फरमाए। अल्लाह कहते एक बात तय है, जब उनके पास अजाब आता था ना, हर कोई बोल बोल के कहता था हमने जुल्म किया, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। हाँ जी, बच गए। मछली ने छोड़ दिया, 40 दिन बाद बाहर उगल दिया। अल्लाह ने फ़ौरन कद्दू के बेल उगा के ऊपर छाया कर दी। 40 और मछली के पेट में रहे तो ऐसे जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो वो धूप और कोई सख्त चीज़ बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, ऐसे हो गए थे। तो फिर अल्लाह ने कद्दू की बेल उसके ऊपर छाया कर दी, ठंडी छाया। सुभान अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने नहीं जगह जगह कुरान में कहा कि मैं अगर झूठा रब पकड़ूं तो मैं ज़ालिमों में से हो जाऊँगा। तो ज़ालिम का जुल्म माफ़ नहीं है, चाहे वो अल्लाह का आखिरी नबी क्यों नहीं। जब उनको खाने पीने के लिए अल्लाह ताला खुद ही दे देते हैं, वो अल्लाह की अता है। अल्लाह का जिक्र भी ऐसी जगहों पे गज़ा बन जाता है। अल्लाह रोज़ी देने वाला है। पता नहीं मछली के पेट में क्या क्या जाता होगा। मरियम को बंद कोठरी में खाना दे सकता है तो यूनुस अलैहिस्सलाम को तो भी दे सकता है। और मछली पता है कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें उसके अंदर जाती हैं, और जब अल्लाह चाहे तो फिर तो जो चाहे अल्लाह उसके अंदर भेज सकता है उसको खाने। अल्लाह कहते हैं जब भी किसी कौम के पास मेरा अजाब आया तो फिर बिलबला उठे, कहने लगे हमने जुल्म किया है, अल्लाह हमारे ऊपर जालिम कभी नहीं था। हमने ये नौबत लेकर आए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब ले आए। आज भी ये बात है, हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है छोटी मोटी, हमें पता चल जाता है कि हमने कोई गलती की है। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, ये हमारे किए की सज़ा है। अल्लाह कहते हैं हर कोई उस वक्त समझ जाता है, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह कहते हैं जिन जिन की तरफ मैंने पैगंबर भेजे सब से पूछूंगा मेरे पैगंबर आए तो तुम लोगों का क्या जवाब था, उनकी तकरीम कैसे की, उनकी बात को कैसे माना। और फिर पैगंबरों को भी पूछूंगा अपनी तबलीग का हक अदा किया कि नहीं, करते रहे या मर्जियाँ। पैगंबर मर्जियाँ नहीं करते। हाँ, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से कह रहे हैं कि तुम गवाह हो कि मैंने तुम्हें दीन मुकम्मल पहुँचा दिया।